Hello everyone, welcome to Lukman IS. Today we are going to have the Hindu analysis of 15th July 2020. So let us see which are the important articles. Not many articles, but yes, very good articles for let's say international relations purpose. जैसे हमने पिछले एक दो दिन में जो डेवलपमेंट्स देखे थे, जैसे कि ईरान चाइना का रिलेशनशिप के ऊपर या इंडिया ईरान रिलेशनशिप के ऊपर, तो उसके ऊपर कुछ अच्छे आर्टिकल्स आज आए हुए हैं इंक्लूडिंग एडिटोरियल. So let us see which are these articles one by one. So these are two articles. We will deal with them together. This is first one is editorial, and the second one it is talking about the let's say news analysis. China making deep inroads into Iran. So there are two important developments with respect to this news. One is that there is let's say Iran China 25-year strategic partnership deal is to be signed in recent future, in next future, and we can say that this is happening at the same time with let's say relations to India. There is what you can say cancellation of that railway project by the Iran with India, and now Iran is moving forward with itself. तो ये हमने कल देखा था न्यूज़ जो है वो, ठीक है. तो उसके ऊपर ये एक एडिटोरियल आया हुआ है और ये न्यूज़ एनालिसिस देखते हैं, ठीक है. तो देखते हैं कि क्या है इशू पूरा का पूरा, जैसे कि इंडिया ईरान चाइना रिलेशंस में रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या क्या है, एंड देन इट्स इम्पैक्ट ऑन India's interest. Let us see important points here. So we can understand the context here. The context is that yes, recently the Iran and China are finalizing $400 billion 25-year partnership agreement, and Iran has dropped India from project to build a rail line from Chabahar port to Zaidan along the border of Afghanistan. तो ये दो डेवलपमेंट्स रिसेंट टाइम्स में हुए हैं साइमल्टेनियसली, जिसको बोला गया है. तो ग्रोइंग ईरान चाइना रिलेशनशिप जो बोल रहे हैं, तो उसमें मेन ये डील है, जैसे वो अभी फाइनल स्टेजेस में है साइनिंग के. तो ये जो डील है ज़्यादातर फोकस इसका तीन एस्पेक्ट्स पे है: इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, कनेक्टिविटी एंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स. ओके. However, it goes beyond these three aspects and it also includes some military aspects and we can say geopolitics involved in that also. Okay. So for example, China and Iran would launch joint training exercises, joint research and weapons development and intelligence sharing. At the same time, it will help in connectivity. For example, it offers its GPS to Iran, build infrastructure 5G for 5G rollout and develop free trade zones. Okay. So basically this agreement also includes increasing China's role in Chabahar port. Now Chabahar port has been let's say India's mainstay in that region as a let's say opposition to China's string of pearls policy. हमने कल ही उसी के बारे में बात की थी कि ग्वादर पोर्ट जो है पाकिस्तान में, वो चाइना डेवलप कर रहा था. अब उसको हम बोलते हैं कि उसको एक अपोजिशन या हम काउंटर बैलेंस करने के लिए हमने ईरान में ये इन्वेस्ट किया था. एट द सेम टाइम वी हैड सम इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस फॉर लेट्स से चाबार पोर्ट डेवलपमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया. वी विल सी दैट. बट ये आपको रिसेंट डेवलपमेंट जिसकी बात कर रहे हैं, तो ये डेवलपमेंट्स हमें पता होनी चाहिए, ठीक है. तो इसका म्यूचुअल बेनिफिट्स क्या है इन दोनों कंट्रीज के लिए, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि दैट ईरान has the main what you can say economic aspect in terms of its mineral oil resources. Okay. And what happened is because of US sanctions and unilateral backout, or let's say what you can say unilateral backout of Iran from the nuclear deal in 2018 and reimposition of sanctions on Iran, that has led to let's say decrease in Iran oil exports, and that's why its economy is facing problem. Okay. So what will happen when it signs the deal with China? It will help its economic let's say recovery and let's say future development. It will help in technological developments, connectivity, infrastructure through Chinese investments. Okay. So this is important. And what are the benefits for China? There are some important benefits. For example, इट इज़ वेरी मेजर एनर्जी, इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल एंड लॉजिस्टिकल पार्टनर जो है चाइना के लिए.
तो एनर्जी पता है मिनरल ऑयल के लिए है, या फिर हम उसी के बारे में इकोनॉमिक भी बोलेंगे, जियोपॉलिटिक्स जो बोल रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस बढ़ेगा इस रीजन में जहाँ पे यूएस का डोमिनेंस है। तो अरेबिक रीजन हम जानते हैं, सऊदी अरेबिया एंड द अदर रीजन्स, देयर यूएस डोमिनेंस इज देयर, and because of that what happened is China did not have any kind of influence earlier. Now with this kind of deal with Iran and Russia along with it, ठीक है, तो मल्टीपोलर वर्ल्ड जो अभी नया आ रहा है उसमें चाइना अपनी जगह बना रहा है। उसने रशिया के साथ अपना एक एग्रीमेंट बना ही लिया है कि क्या बोलते हैं हम उनको, फ्रेंडशिप का एक उनका एक नाता है। एंड देन नाउ ईरान हैज जॉइंड दिस ब्लॉक। Okay, so basically this is nothing but a block being created against USA. Okay, so we can understand that the significance of China, let's say for the China, main is energy or let's say economic, and then second is geopolitical. Fine, so these are some important. At the same time Iran is very crucial for China's BRI, Belt and Road initiatives, जो हम सिल्क रूट की बात करते हैं, ठीक है, तो या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करते हैं चाइना की, तो ईरान इज सिग्निफिकेंट व्हाट यू कैन से लोकेशन। एट द सेम टाइम इट विल हेल्प टू promote its this project, belt and road initiative. Fine, so what are the impacts on India's interest here? This is very important aspect, और आपको जब एग्जाम आएगा GS2 में, सॉरी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में GS2 में, तो ये एक एस्पेक्ट ज़रूर पूछेंगे, ठीक है, कि इंडिया के इंटरेस्ट पे क्या इम्पैक्ट है। तो क्या है, हमें पता है कि चाबार पोर्ट जो है 2003 में साइन किया था, बट उसके बाद ज़्यादातर उसके डेवलपमेंट हुई नहीं थी, ठीक है। बट हमारे पीएम जब 2016 में वहाँ पे गए थे ईरान में, तो वहाँ पे वो डील फिर से साइन हुई थी, जिसको हम बोलते हैं ट्राइलैटरल ट्रेड एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट विद ईरान एंड अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये ट्रेड एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट में हमने एग्री किया था कि ये रेलवे लाइन जो है, ठीक है, 628 किलोमीटर रेलवे लाइन फ्रॉम चाबार टू जहादिन, जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर फ्रॉम अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये एक रेलवे लाइन जो है बहुत सारे रीजंस की वजह से अब तक वो शुरू नहीं हुई, इंक्लूडिंग लेट्स से इंडियाज रिलक्टेंस, एट द सेम टाइम द सैंक्शंस, फियर ऑफ सैंक्शंस फ्रॉम यूएसए, ठीक है। तो ये सब रीजंस उसमें बताए गए हैं, तो ये आपको बैकग्राउंड में पता होना चाहिए कि क्या रीजंस थे, अब तक शुरू क्यों नहीं किया था। एंड दैट्स वाई रिसेंटली नाउ ईरान ड्रॉप्ड इंडिया फ्रॉम द प्रोजेक्ट एंड डिसाइडेड टू गो ऑन इट्स ओन। तो इसके पीछे ये भी रीज़न हो सकता है कि ये खुद से करने का उनका डिसीजन क्यों हुआ था, क्योंकि अभी उनको पता है अगर उनको इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए होगा तो वो चाइना से मिलेगा, राइट। तो अब एनालिसिस इस इशू का करते हैं। अगर एनालिसिस करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट है, देखिए, इन अ वर्ल्ड वेयर कनेक्टिविटी इज सीन एज अ न्यू करेंसी, इंडियाज लॉस कुड वेल बिकम चाइनाज गेन। तो हम बोल सकते हैं कि ये एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए। The impression that wavered due to US pressure, especially after India cancelled oil imports from Iran, also questions New Delhi's commitment to strategic autonomy। तो ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारे जो कुछ डिसीजंस होते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस, दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी पर्टिकुलर कंट्री और ग्रुप ऑफ कंट्रीज, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इंपॉर्टेंट डिसीजंस जैसे कि डिफेंस रिलेटेड कुछ डिसीजंस है, जैसे कि हम रशिया से कुछ डिफेंस इक्विपमेंट्स इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा वो डिसीजन जो है यूएस की वजह से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, ठीक है। या यूएस से कुछ ले रहे हैं तो रशिया की वजह से वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा, उसको बोला जाता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डिसीजंस में ये मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। However, we can see that there had been US pressure on India regarding these sanctions on Iran and let's say import of oil, investment in Chabar port, all these things are there. Though US has waived let's say India from this investment or sanctions regarding this investment, however India has been cautious after that. So that's why the strategic autonomy is compromised, हम analysis में बोल सकते हैं उस तरीके से, ठीक है। तो ये एक हम बोल सकते हैं कि ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया ईरान को करने का, तो वो चाइना से आया है, क्योंकि वो अभी डील साइन करने वाले हैं।
ठीक है। एट द सेम टाइम दिस एग्रीमेंट हैज लेट्स से अ की रोल टू बी प्लेड बाय चाइना इन चाबार पोर्ट। तो वहाँ पे फ्री ट्रेड जोन्स डेवलपमेंट का या इन्वेस्टमेंट का, रिफाइनरी में इन्वेस्ट करने का, ये सब चीज़ें अभी चाइना करेगा वहाँ पे। तो ये कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि इंडिया ने वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया वहाँ पे, इंडिया ने वो पोर्ट डेवलप किया, और कहीं ना कहीं अभी उस पर चाइना बिल्ड करेगा और उसके बेनिफिट्स लेगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक हम बोल सकते हैं निगेटिव पॉइंट है, एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है। एंड दैट्स वाई द वे फॉरवर्ड शुड बी लाइक इंडिया शुड बिल्ड द ट्रस्ट विथ ईरान एंड प्रोएक्टिवली परस्यू द रेलवे प्रोजेक्ट। ठीक है, अभी तक कोई हम बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा हमने वो अपॉर्चुनिटी खो नहीं दिया है। दिस शुड बी डन बाय इंश्योरिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड नॉट अलाइनिंग विथ इंटरेस्ट ऑफ यूएसए। Benefits of investment done in development of Chabahar port should be harnessed to ensure energy security of India। तो आपको ये एक बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि एनर्जी सिक्योरिटी क्यों बोला जा रहा है। ठीक है, तो इंडिया के लिए हमने ये अल्टरनेटिव पाथ चूज किया था। जैसे कि इंडिया टू अफगानिस्तान डायरेक्टली जा नहीं सकते हैं, तो वो अपना रूट जो है लैंड रूट पाकिस्तान से जाता है। एंड बिकॉज पाकिस्तान इज नॉट अलाउिंग दैट लैंड रूट, और उसकी वजह से हमारा जो एनर्जी सिक्योरिटी मतलब अफगानिस्तान और ऊपर सेंट्रल एशिया के जो कुछ कंट्रीज है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, तो उन कंट्रीज से हमें मिनरल्स, ऑयल एंड जो बाकी के मिनरल्स है, तो वो इंपोर्ट करने में मुश्किलें हो रही थी। इसलिए हमने क्या सोचा था कि ईरान के थ्रू जाएंगे। ठीक है, तो सी रूट लेंगे, चाबार पोर्ट से फिर रेलवे लाइन, रोड लाइंस होगी अफगानिस्तान में और फिर सेंट्रल एशिया में। ठीक है, तो ये उसका एक बैकग्राउंड है, ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड अभी समझ में आ रहा होगा कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट था चाबार पोर्ट जो है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। तो ये वर्ड्स लाइए आंसर में जब भी आप आंसर लिखते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, डिस्कस द रिसेंट डेवलपमेंट्स इन चाइना ईरान रिलेशंस एंड एग्जामाइन इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर ये पूरे आर्टिकल में मिल जाएगा राइटअप में। ठीक है, तो आप इसको फॉलो रखिए और आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, फाइन। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल, सिमिलर आईआर डेवलपमेंट्स, ईयू इंडिया टू मीट ऑन रिज्यूमिंग एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स निगोशिएशंस। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसको बोला गया है। ठीक है, तो जो इंडिया ईयू का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, तो उसको क्या नाम दिया गया है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, ये नाम दिया गया है BTIA। ये पर्टिकुलरली आपको पता होना चाहिए। तो 7 साल पहले इसके ऊपर निगोशिएशंस चल रहे थे, तो वो डिसकंटिन्यू किए गए बिकॉज ऑफ सम रीजन। नाउ वी आर रिज्यूमिंग दोज निगोशिएशंस लेट्स से टू कम एक लेट्स से म्यूचुअली एग्रीड पॉइंट टू साइन दिस एग्रीमेंट। सो ये एक हमारे लिए सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, और उसके रिगार्डिंग अनाउंसमेंट रिसेंटली जो अभी अपकमिंग वर्चुअल EU इंडिया समिट होने वाली है उसमें हो सकता है। Along with this decision, there will be some agreements signed by India and EU, such as a roadmap for cooperation agreement on research sharing for civil nuclear cooperation, launch a maritime security dialogue, negotiations between Europol and CBI। तो इसके ऊपर भी डिस्कशन होगा। Along with that, the discussion agenda on the summit will involve 3 important aspects. First is tackling COVID-19 and its impact on economy and global order, जिसमें वैक्सीन डेवलपमेंट और ट्रीटमेंट की भी बात की जाएगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज दैट विड्रॉल ऑफ USA फ्रॉम मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक WHO। ठीक है, एंड थर्ड एस्पेक्ट इज दैट कंसर्न्स ओवर असर्टिव चाइना। तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट और इंटरनेशनल रिलेशंस में जो इश्यूज है, तो मेन इश्यूज ये 3 अभी उसके डिस्कस किए जाएंगे उस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो इंडिया EU में क्या क्या कंसर्न्स है, हम हमारा रिलेशन अब तक पोटेंशियल क्यों नहीं रियलाइज कर पा रहे हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट कंसर्न्स आर देयर, दैट ट्रेड विथ इंडिया फॉर्म्ड अंडर 3% ऑफ EU's ग्लोबल ट्रेड। तो हम बोल सकते कि वो स्क्यूड ट्रेड है, ट्रेड बैलेंस ठीक से नहीं है। तो EU का जो ग्लोबल ट्रेड है उसमें इंडिया का हिस्सा सिर्फ 3% है। हाउएवर EU हैज बीन द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड इन्वेस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंडिया में EU ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। एट द सेम टाइम
इंडिया जो है ईयू के साथ एक्सपोर्ट्स बहुत सारे करता है। 11% जो है इंडिया का टोटल ट्रेड में से इंडिया का 11% ट्रेड जो है वो ईयू के साथ यानी कि यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के साथ होता है। ठीक है, तो ईयू इज कंसर्न्ड ओवर ट्रेंड इन इंडिया दैट गोज टुवर्ड्स प्रोटेक्शनिस्ट साइड। तो उन्होंने बोला है कि अभी जो रिसेंट इनिशिएटिव्स है लाइक मेक इन इंडिया को री एम्फसाइज किया जा रहा है, या आत्मनिर्भर अभियान जो अभी लॉन्च हुआ है, तो एक कहीं ना कहीं प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी दिखाई देती है इकोनॉमी में, एंड दैट्स व्हाई they are concerned about this aspect also. And third aspect is that there are reservations about model bilateral investment treaty जिसको बोला गया है BIT that New Delhi has proposed, especially on the dispute redressal mechanism or dispute mechanism in Indian courts. ठीक है, तो ये क्लॉज उनको सही नहीं लग रहा है। They are concerned about this clause that dispute redressal is to be taken place in Indian courts rather than any arbitration court or other redressal mechanism. Fine. तो ये कंसर्न्स आपको स्पेसिफिक पता होने चाहिए। हर एक बायलैटरल रिलेशन में आपको कुछ स्पेसिफिक कंसर्न्स पता होने चाहिए और वो आंसर में लिखने चाहिए। जनरल स्टेटमेंट्स मत लिखिए, मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो what can be the conclusion in this? The conclusion can be, we can say that there are some positive aspects, and for example recently जो हमने हम बोला कि नॉन परमानेंट सीट के लिए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के लिए इंडिया का इलेक्शन हुआ था। इंडिया गॉट इलेक्टेड फॉर 2 years नाउ, एंड दिस वाज लेट्स से वेलकम बाय ईयू, एंड इट asserts India's role in world, let's say, order, and we can say influential role in world order, and that too we can say that UNSC also. Fine. तो किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है? India EU relationship has not progressed to realize its true potential. Analyze the statement. तो ये एक आपको चीज पता होनी चाहिए कि ये क्या कंसर्न्स है सारे के सारे, अब तक हुआ क्यों नहीं है ये सब। ठीक है, निगोशिएशंस, डायलॉग, ये सब। ठीक है, एट द सेम टाइम द अदर एस्पेक्ट्स लाइक वी कैन से दैट इन EU एंड स्पेसिफिक कंट्रीज। ठीक है, तो जब आपके स्पेसिफिक बायलैटरल ट्रेड के साथ जो भी रिलेशन होगा तो उसके ऊपर अलग से प्रिपेयर कीजिए, और होलिस्टिक जब इंडिया EU का रिलेशन का बात होता है तो वो स्पेसिफिक रखिए उसको। ठीक है, अगर इंडिया जर्मनी रिलेशन बोलते हैं या फिर इंडिया फ्रांस रिलेशन बोलते हैं तो उसको अलग से प्रिपेयर कीजिए, और इंडिया EU का रिलेशन अलग से प्रिपेयर कीजिए। फाइन, सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट आर्टिकल from the first page we can see that center limits the duration of online school sessions. तो बेसिकली अभी NCERT ने प्रज्ञाता गाइडलाइंस रिलीज किए हैं। ठीक है, बेसिकली गवर्नमेंट ने रिलीज किए हैं, NCERT ने फ्रेम किए हैं। ठीक है, तो ये प्रज्ञाता गाइडलाइंस जो है ऑनलाइन एजुकेशन स्कूल के लिए, तो वो कैसे होना चाहिए वो गाइडलाइंस दिए हैं, एंड दे हैव आस्क्ड स्टेट्स टू अडॉप्ट दीज गाइडलाइंस and modify according to their local conditions, local circumstances. तो इसके एक बेसिक चीज़ें कुछ हम बता देते हैं। तो प्रज्ञाता मतलब क्या है, फुल फॉर्म यहाँ पे देख सकते हैं आप। प्लान, रिव्यू, अरेंज, गाइड, याक मतलब टॉक बोल रहे हैं, असाइन, ट्रैक, अप्रिशिएट, तो इसको प्रज्ञाता बोला गया है। ठीक है, तो ये भी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि प्रज्ञाता का मतलब क्या है। तो इसमें रिकमेंडेशंस क्या क्या दिए गए हैं ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। तो बेसिक रिकमेंडेशन जो है प्री प्राइमरी के लिए उन्होंने बोला है कि डायरेक्ट स्टूडेंट के साथ टीचर का इंटरेक्शन नहीं होगा, या स्टूडेंट ऑनलाइन कुछ नहीं देखेगा प्री प्राइमरी पे, रादर दे विल इंटरेक्ट विद पेरेंट्स एंड गाइड देम फॉर 30 minutes, and then parents will, let's say, teach them or let's say have some activity with student or their children. Fine. तो प्री प्राइमरी का ऐसा कंसर्न है। क्लासेस 1 to 12 में उन्होंने बोला है कि अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर जो NCERT पे दिया गया है उसको यूज़ करे, उसको अडॉप्ट करे, और उसको मॉडिफाई करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्लास 1 to 8 उन्होंने क्या बोला है, दे हैव सेड दैट ओनली 2 sessions ऑफ 30 to 45 minutes, यानी कि 1.5 घंटे के ऊपर टोटल जो डे होगा वो they will not see the screen more than 1.5 hour in a day. ये भी वो एक बहुत स्पेसिफिक उन्होंने बोला गया है, और वो भी 2 सेशन करने हैं उसके।
ठीक है, डिवाइड करके 2 या 30 या 35 मिनट्स के। और 9 to 12 जो क्लासेस है उसके लिए उन्होंने बोला है कि 4 सेशन कर सकते हैं 30 to 35 मिनट 45 मिनट्स के। अब वो स्टेट्स और यूटीज अपना अपना उसके ऊपर डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब इसलिए दिया गया है रिकमेंडेशंस। फर्स्ट इज वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर दैट द स्क्रीन टाइम, the students are exposed to harmful rays and therefore they have some health impact on that, and this report, or you can say guidelines, acknowledges that, and therefore the guidelines given for this timelines. At the same time it talks about some, let's say, physical and mental health of students to be taken care of। जैसे कि उन्होंने बोला है कि लैपटॉप लेके अगर स्टूडेंट सामने बैठता है तो वो किस तरीके से बैठना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वो गाइडलाइंस है, आप वो गाइडलाइंस के पीडीएफ देखिए, ठीक है। प्रज्ञाता गाइडलाइंस आप टाइप करिए तो वो आ जाएगा। तो उन्होंने क्या लिखा हुआ है देख सकते हैं आप, कि जैसे कि अगर स्टूडेंट ऐसे चेयर पे बैठता है तो वो मोबाइल या लैपटॉप जो है उसकी स्क्रीन एग्जैक्टली आंखों के सामने होनी चाहिए, ऐसे नीचे नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट जो है वो उसकी पीठ जो है वो स्ट्रेट रखनी है, वो ऐसे झुक के नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। तो ये तो पेरेंट्स देखेंगे ना घर में अभी सब, ठीक है। तो ये पेरेंट्स के लिए भी एक गाइडलाइंस है, उसमें फोटो दिखा के उन्होंने डूज एंड डोंट्स जो है वो बताए गए हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम कंटिन्यूसली आधा घंटा या 45 मिनट्स के लिए एक जगह पे बैठना नहीं है, तो उन्होंने कॉम्बिनेशन बोला है कि उठ के थोड़ा सा वॉक करना है फिर बैठना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो ऑब्वियसली हमने ही नॉर्मल रूटीन लाइफ में बैठना चाहिए, यूपीएससी के स्टूडेंट्स ने भी। जैसे कि हम देखते हैं हम 3-3 घंटे एक ही चेयर पे बैठे हुए रहते हैं, ठीक है। तो इसके इम्पैक्ट जो है वो बाद में दिखेंगे, अभी नहीं समझेगा, ठीक है। तो क्या करना है, एक छोटी सी हैबिट हम भी लगा सकते हैं। क्या हैबिट लगानी है, ठीक है। तो 30-45 मिनट्स या 1 आवर के बाद एटलीस्ट 5 मिनट्स के लिए खड़े होना है, वॉक करना है, ठीक है। कंटिन्यूसली 1 घंटे के ऊपर नहीं बैठना है, आप टाइमर लगा सकते हो मोबाइल में, वॉच पे, ठीक है। तो ये एक चीज़ फॉलो कीजिए। अगर आप मोबाइल पे कुछ वीडियो वगैरह देखते हैं ऑनलाइन एजुकेशन का, जैसे अगर आप यही द हिंदू एनालिसिस देख रहे होंगे तो ऑलमोस्ट आधे घंटे का होता है, तो वो सामने रखिए, आप चेयर पे बैठते हैं तो, ठीक है। हाथ में पकड़िए मोबाइल या फिर उसका स्टैंड आता है तो वो स्टैंड लीजिए, ठीक है। क्योंकि अभी जो है ऑलमोस्ट अगले 6 महीने आप ऑनलाइन एजुकेशन पे फोकस रखोगे, तो ये सारा डिजिटल कंटेंट जो जिसको बोलते हैं आप, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपका स्टडी का पैटर्न जो है उस पर फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। फाइन। तो ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए था जो एनसीईआरटी और गवर्नमेंट ने ये नए गाइडलाइंस दिए स्टेट्स और यूटीज को अडॉप्ट करने के लिए। फाइन। तो इसमें काफ़ी अच्छा उन्होंने बोला है कि ऑनलाइन मोड जो होते हैं, मोड्स ऑफ ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन, तो उन्होंने 3 इसमें डिवाइड किया है। जैसे ऑनलाइन मोड है जिसमें उन्होंने कंप्यूटर और स्मार्टफोन विथ इंटरनेट कनेक्टिविटी बोला है, ठीक है, तो उसको ऑनलाइन मोड बोला है। पार्शियली ऑनलाइन मोड क्या बोला है, जहाँ पे कंप्यूटर स्मार्टफोन अवेलेबल है बट रेगुलर इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, स्पीड नहीं है, ठीक है, तो इसको क्या बोला है, पार्शियल ऑनलाइन मोड। और ऑफलाइन मोड में उन्होंने बोला है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है, बैंडविड्थ की वजह से, और इसकी वजह से अभी वो क्या यूज़ करेंगे, टेलीविज़न या रेडियो यूज़ करेंगे, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता है ना विलेजेस में वगैरह, ऐसी जगह पे कहाँ हिंटरलैंड्स में, तो वहाँ पे टेलीविज़न और रेडियो जो है उसका रीच काफ़ी होता है, तो वो यूज़ किया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी मेंस में अगर या एसए में क्वेश्चन आता है ऑनलाइन एजुकेशन पे, तो मोड्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन में डायरेक्टली ये 3 पॉइंट्स लिखिए आंसर में, ठीक है। तो उसी गाइडलाइंस में आखिर में कुछ ऑनलाइन एजुकेशन के इनिशिएटिव्स दिए गए डिजिटल एजुकेशन के अंडर पीएम ई विद्या प्रोग्राम। तो ये कौन से है ब्रीफली देख लेते हैं। पीएम ई विद्या प्रोग्राम जो है लॉन्च किया था अभी रिसेंटली 17 मई 2020, ठीक है। तो ये सारे प्रोग्राम्स उसमें क्लब करके अभी ऑनलाइन एजुकेशन के या डिजिटल एजुकेशन जो है इसके ये हम नेशनल इनिशिएटिव्स बोल सकते हैं, इसका यूटिलाइजेशन होगा। तो इसके बारे में 1 बाय 1 ब्रीफली देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि पहला है दीक्षा, 1 नेशन 1 डिजिटल प्लेटफॉर्म। दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन नॉलेज शेयरिंग, ठीक है। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज नेम सजेस्ट,
तो सारा डिजिटली प्रिपेयर्ड मटेरियल जो होता है वो स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए अवेलेबल किया जा सकता है एक ही प्लेटफॉर्म में। ये उसके पीछे का मोटिव था। डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड एसोसिएशन विद NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, आपको ध्यान रखना है, ये NCERT का पार्ट नहीं है, रादर एक सेपरेट बॉडी है टीचर्स एजुकेशन के लिए, ठीक है। बट उसका सेक्रेटरिएट जो है वो NCERT में लोकेटेड है, NCERT की बिल्डिंग में, ठीक है। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन आप रख सकते हैं। नेशंस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर यूटीज एंड स्टेट्स फॉर प्रोवाइडिंग QR कोडेड टेक्स्ट बुक्स, MOOCs कोर्सेज, क्वालिटी कंटेंट फॉर स्कूल एजुकेशन और फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर। तो ये जो डिजिटल कंटेंट जो है इसका फ्रीली एक्सेसिबल है, आप इसकी वेबसाइट को विजिट करके इसको एक्सपीरियंस कीजिए। किसके लिए है ये? पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए। तो वहाँ पे आप जब विजिट करोगे तो वो पहले पूछेंगे कि आपको आप मतलब कौन हो, स्टूडेंट हो, टीचर हो या पेरेंट हो, उसके हिसाब से क्लिक करेंगे तो अगला कंटेंट आएगा सारा का सारा। उसके हिसाब से दीक्षा का ऐप भी है, एंड्रॉयड ऐप, ठीक है, तो वो डाउनलोड करोगे तो उसमें भी आपको उस चीज़ का कंटेंट दिखेगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। उसके बाद इस तरीके से उसके ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है दीक्षा प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आपको ये कंफ्यूज कर सकते हैं कि NCERT डाल के, तो वो क्या है? NCTE है, नेशनल काउंसिल ऑफ ऑन टीचर्स एजुकेशन, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, स्वयं प्रभा, ये टीवी चैनल्स है, 32 DTH टीवी चैनल्स है ग्रुप, और ये यहाँ पे एजुकेशनल प्रोग्राम जो है उसके वीडियो स्ट्रीम करते हैं इन हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू। और कौन से सैटेलाइट का यूज होता है? GSAT 15 सैटेलाइट का, ठीक है। ये स्वयं प्रभा चैनल जो है वो, ठीक है, DTH चैनल। तो जब हमने बोला था थर्ड मोड, तो उसमें था टेलीविजन, ठीक है, तो वो टेलीविजन के लिए ये चैनल है। नेक्स्ट है स्वयं प्लेटफॉर्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। स्वयं प्लेटफॉर्म जो है उसका फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म थोड़ा सा अलग है, अजीब है, ठीक है। तो ये एक आपको पता होना चाहिए। कब शुरू हुआ था ये? 2017 में लॉन्च हुआ था। तो इसका एक मोटिव है, उसका मोटिव क्या है? टू लेट्स से मेक अवेलेबल बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज एट अफोर्डेबल कॉस्ट इंक्लूडिंग मोस्ट डिसएडवांटेजेस advantage sections of society. Also it seeks to bridge the digital divide for, let's say, those who have and those who have not this kind of, let's say, what you can say, digital platforms, or let's say access to education, sorry. It hosts courses from class 9 till post graduation. यहाँ पे आप स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है, ये स्पेसिफिक है 9th क्लास से पोस्ट ग्रेजुएशन तक सारे कोर्स उसमें अवेलेबल है। यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, ग्रेजुएशन एंड लेट्स से पोस्ट ग्रेजुएशन, 9 to 10 सेकेंडरी एजुकेशन, 11th 12th हायर सेकेंडरी एजुकेशन, देन ग्रेजुएशन, देन पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सारे कोर्सेस उस पर अवेलेबल है। अब इन कोर्सेज का कोर्स मटेरियल लेट्स से डेवलप करने के लिए ऐसे 9 एजेंसीज को अपॉइंट किया गया है सेपरेटली यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें MOOC, मासिव ऑनलाइन ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो बोला जाता है, MOOC, तो उसके लिए जो NIOS जो है उसको स्कूल करिकुलम के लिए रखा गया है, ठीक है, NCERT और NIOS दोनों को, ठीक है। तो सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए ये सारे ये दो उस पर काम करते हैं स्वयं के प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। किसने डेवलप किया हुआ है? तो ये MHR, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, NPTEL, ये कंपनी है। IIT मद्रास जो है उसके साथ में गूगल और परसिस्टेंस कंपनी जो है, तो इन्होंने वो डेवलप किया हुआ है प्लेटफॉर्म, स्वयं प्लेटफॉर्म। तो ये जैसे मैंने बताया कि 9 एजेंसीज जो है अलग अलग के लिए अलग अलग है। AICT जैसे है वो सेल्फ पेस्ड इंटरनेशनल कोर्सेज, जिसको टेक्निकल कोर्सेज जिसको बोला गया है, या फिर NPTEL जो है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एंड एनहांस लर्निंग फॉर इंजीनियरिंग कोर्सेस है। UGC जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन टेक्निकल नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेस है, ठीक है। सॉरी, मैंने NPTEL कंपनी बोला था, और अदर इज दिस प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग
तो ये सारे जो है जैसे कि NIOS और इग्नू दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, तो इग्नू सॉरी NCERT जो स्कूल एजुकेशन के लिए दोनों, ठीक है। तो सारे के सारे तो याद नहीं रखने हैं हमें ये चीज़, ठीक है। ऐसे आपको फैक्चुअल डेटा इतना नहीं पूछेंगे एग्ज़ाम में, बट इसके पहले का हमने जो बेसिक्स देखा है स्वयं का, वो एग्ज़ाम में आ सकता है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो ये कहाँ से है, क्लास 9 से है, ठीक है। ऐसे जब कोई इनिशिएटिव होता है तो जनरली उसके वेबसाइट को जाके विजिट करना चाहिए और उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने लेना चाहिए। मूविंग ऑन, रेडियो एंड कम्युनिटी रेडियो, दो चीज़ें हैं यहाँ पे। एक है रेडियो वाहिनी जो है FM रेडियो है, जो कम्युनिटी रेडियो ऑफ NIOS का है। तो ये एक चीज़ पता होनी चाहिए कि रेडियो वाहिनी जो है वो NIOS का है, और शिक्षा वाहिनी जो है ये एक कम्युनिटी रेडियो सॉरी जो ऑडियो बेस्ड लर्निंग इनिशिएटिव है CBSE का, और उसमें एंड्रॉयड ऐप भी आता है, ठीक है। तो उसमें ऑडियो फाइल उन्होंने डाली हुई है, जो स्टूडेंट उस पर वो ऐप डाउनलोड करके सुन सकता है, ठीक है। जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डायरेक्टली वो वर्क नहीं जो वर्किंग होते हैं कुछ स्टूडेंट्स होते हैं या रूरल एरियाज़ में जो है वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, उनके लिए हम बोल सकते हैं ये ऑडियो फाइल्स उन्होंने डाली हुई है, शिक्षा वाणी, ठीक है। तो वाणी और वहिनी, तो ये एक दो अलग अलग रेडियो प्लेटफॉर्म्स है। हमने बोला था थर्ड मोड जिसमें एक टीवी था और एक रेडियो था, तो ये रेडियो वाहिनी और शिक्षा वाणी, और दूसरा था स्वयं प्रभा, ये प्लेटफॉर्म आपको पता होने चाहिए। और लास्टली ऑनलाइन कोचिंग के लिए हम बोल सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है दो। एक है IIT प्रोफेसर असिस्टेड लर्निंग, जहाँ पे IIT प्रोफेसर ने लेक्चर दिए हुए रहते हैं स्टूडेंट को जो IIT JEE प्रिपेयर कर रहे हैं, और वो ब्रॉडकास्टेड होते हैं स्वयं प्रभा चैनल्स के ऊपर, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेशनल टेस्टिंग अभ्यास नाम का एक एप्लीकेशन है, जहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, तो उसके लिए एक लर्निंग एप्लीकेशन है ये, पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग एप्लीकेशन, ठीक है। तो नेशनल टेस्ट अभ्यास, ठीक है। तो ये सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। एट द सेम टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट एसे इन मेंस एग्जामिनेशन, बहुत ज़्यादा चांसेस है इस बार ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर, डिजिटल एजुकेशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये सारे प्लेटफॉर्म्स के नाम आपको पता हो, सो एज टू मेंशन दीज इनिशिएटिव्स इन योर आंसर, फाइन। सो दिस वाज अबाउट टुडेज द हिंदू न्यूज़पेपर। ज़्यादा हम बोलते हैं कि आर्टिकल्स नहीं थे, बट कंटेंट बहुत ही सिग्निफिकेंट है आपकी एग्जामिनेशन के लिए, फाइन। So for further information regarding ED, that is editorial discussion classes, wherein in-depth analysis of all these articles, अभी हमने जो articles पढ़े इसका बहुत डिटेल एनालिसिस किया जाएगा। एजुकेशन का जो हम बोलते हैं डिजिटल एजुकेशन के ऊपर एक सेपरेट टॉपिक डिस्कस किया जाएगा एडिटोरियल डिस्कशन के कोर्स में by Ansari sir and team. You can contact Lukman IAS to enroll that course. It is very helpful for your examination. Thank you.